This is an integration question, A-level math. Find expression for dy by dx. The equation that we given for y is this. You're supposed to differentiate it, first derivative निकाल के और फिर उसका integration भी करना है बाद में. So I'll rearrange this and write it like this. Take a look over here. I brought the expression 4x plus 1 in the numerator. It becomes negative. और जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ था ये, उसको 1/2 में लिखिए. डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है. Now you know this 1/2 comes over here. इसमें से 1 वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है. We've done just that. And once ये तो पावर्स के साथ डील किया. Once you're done with that, you differentiate the expression as well. Similarly, this will come over here, get multiplied. पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Once you do that, you end up with this answer. This is the first derivative. So second part of the same part, it has another question to it, which is the integral of y. How do you do that? You write the same expression that you converted into this format with an integral sign. Now once you have the integral sign, we've discussed this multiple times. The expression inside the bracket, it should have, for you to be able to differentiate, integrate it, its derivative should be outside the bracket. If it's not, that means you have to introduce it. So once you will introduce 4 over here, you will have to introduce 1/4 outside of the integral sign. You can watch my lessons for this to be able to cancel out what you've done right now. For instance, now its derivative should be 4. It should be present outside. We have a 9 outside, so you're going to introduce a 4 outside. In order to introduce a 4 outside, you will introduce a 1/4 outside integral sign to cancel its effect. So that 1/4 will multiplied with 9 will become 9/4. If you don't understand this, you will have to go back to my lessons to understand, recorded lessons to understand how integration works. And then you introduce a constant c in it. Once you're done with this 1/2 plus 1 is basically 3/2. If it goes in the denominator, it will become 2/3, reciprocal of that. So 2/3 multiplied by 1/4. Similarly, 9/4 comes over here as it is. Negative half plus 1 becomes 1/2. If it goes in the numerator to get multiplied with 9/4, that 1/2 will become 2/1, which is 2. Here it is. If you multiply this, this is the final answer for the integration of y. This was worth 6 marks. And if you get a good hang of differentiation and integration, you'll know that this is very easy. मुफ्त के मार्क्स चाहिए. Find the coordinates of m. m क्या है? m आपका ये lowest point है इस curve का, where that turning point या stationary point जहाँ पे derivative 0 की इक्वल होता है. तो derivative हमने first part से निकाला है, सिर्फ उसको यहाँ पे दोबारा लिखा है and we put it equals to 0. Once you do that, this entire expression goes over there, gets multiplied with 0. ये 0 हो गया. इसको expand किया, ये लिख लिया और उसको सॉल्व किया, x हमारे 2 आ गया. अब हम इन्होंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कहा था, x और y. तो x की वैल्यू आई है, ये उठा के आपने जो है अभी हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे और यहाँ पे डाल देनी है, उससे आपका y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. वो हमने किया. ये x की वैल्यू 2 जो है यहाँ पे भी डाल दी, यहाँ पे भी डाल दी. वी सॉल्व फॉर इट, वी गेट y as 6. नाउ दिस y 6 इज द y कोऑर्डिनेट. तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 2 and 6. दैट वाज 3 मार्क्स. द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व. The y-axis पे उसकी obviously लिमिट है. In the line m को जो टेंजेंट जा रहा है, that is parallel to the x-axis. What do we have to find? We have to find the area of the shaded region, this one. अब इंटीग्रेशन का काम ही यही है कि वो आपको शेड के मेंसुरेशन में जैसा ओलेवस में करते थे कि डिवाइड करो हिस्सों में और फिर उसको कॉम्पाउंड शेप को बेसिक शेप्स में डिवाइड करो, फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ. डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में भी हम स्पीड टाइम ग्राफ में भी डिस्टेंस निकालते थे एरिया अंडर द कर्व करके. इंटीग्रेशन में आपको बस इक्वेशन पुट इन करनी है, लिमिट्स पुट इन करनी है और आंसर आ जाएगा. तो लिमिट हमारी क्या है? m की वैल्यू थी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर 2 and 6. तो हमें यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ कहीं पे 1 होगी, यहाँ 0 है. तो हमारी लिमिट क्या होगी? 0 से 2 तक. हमने क्वेश्चन में 0 से 2 लिमिट डाल देनी है किस इक्वेशन में, इसमें उसको इंटीग्रेट करना है, वो खुद ही आंसर निकाल देगा. इशू ये है कि वो आंसर जब निकाल के देगा तो वो इस पार्ट का भी होगा और वो इस ट्राइंगल का भी होगा. अब आपने उसमें बाद में से ये पार्ट माइनस करना है इस तरह. तो हमने ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लिखा, उधर हमने इक्वेशन डाली. इक्वेशन कहाँ से है? ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन यहाँ पे मौजूद थी, जो प्रीवियस पार्ट में हमने कैलकुलेट की थी,
उसमें आप नोट करो तो हमने ये कांस्टेंट सी नहीं डाला कि सी यूजलेस है ओवर हेयर, बिकॉज जब आप लिमिट्स लगाते हो एक प्लस के साथ होता है एक माइनस के साथ, उसको आप ट्राई भी कर लो, इट विल गेट कट आउट। तो हमने उस सी के बगैर ये डाला, यहाँ पे सारी वैल्यूज डाली, एंड वी पुट अपर लिमिट ऑफ 2 अभी ग्राफ में समझाया, लोअर लिमिट ऑफ 0 बिकॉज ऑरिजिन से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाता है, और साथ रेक्टेंगल जो भी मैंने बाद में इरेज करके दिखाया था ना यहाँ पे ये वाला, इसको माइनस किया। इसको क्यों माइनस किया? बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं है हमारे, तो इससे ऊपर वाला शेडेड रीजन है। नाउ वी गॉट लॉट ऑफ एल्जेब्रा, लॉट ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे x की वैल्यू पहले आपने 2 डाली, x की वैल्यू 2 डाली और 2 डाली, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस में डाल दिया, फिर x की वैल्यू 0 डाली और यहाँ पे भी 0 डाली, एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस में डाल दिया ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। एरिया का कॉन्सेप्ट है। और ये 2 लिमिट जो आपने लगाई हैं इसके दरमियान ये बहुत ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो। क्यों? बिकॉज यू सब्ट्रैक्टिंग द कर्व की अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। आपने कहा सिर्फ मुझे इन दो के दरमियान चाहिए, तो अपर लिमिट में से जितना एरिया आ रहा है माइनस लोअर लिमिट, उसके पीछे भी कोई होगा, आपने ये 2 एरियाज़ की लिमिट लगा दी, उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो। वंस यू सब्ट्रैक्ट दैट और में से ये आप रेक्टेंगल का एरिया भी माइनस करते चले जा रहे हो, तो यू विल गेट द आंसर 4/3। नाउ दिस माइट नॉट बी मेकिंग सेंस अगर आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या सीखने आए बैठे हो इस वीडियो में। दिस इज़ जस्ट a past paper question video, solution video. For that you'll have to go, for the concept you'll have to go back to my channel and find a video on the lesson of integration. Khuda Hafiz.